Space agency ISRO just launched a brand new weather satellite named INSAT 3DS. And this special satellite will orbit Earth and will keep a close eye on the things like weather pattern, the environment, and even our oceans. So this is launched by the powerful GSLV F-14 rocket. We will talk about the whole things in detail. And so overall, this new satellite will help us better understand our planet. Hello everyone, so welcome to the FT Plus Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exams. So as we already discussed or mentioned that we will discuss about the GSLV and the related mission in news, and we will also talk about why it is called, the GSLV is called the naughty boy of the ISRO. So quickly jump to the context, and before jumping to the context, let me tell you the relevance. It is relevant for the various civil services exams, especially for UPSC in prelims and GS paper 3rd, like science and technology, current affairs of national importance, and especially in space sector. Recently, ISRO has launched a new generation meteorological satellites. जो weather satellite है, INSAT 3DS was launched by ISRO through GSLV F-14 rocket. Satellite was placed in the geostationary orbit. ठीक है, तो जो GSLV rocket था, it made a flawless flight and deposited the satellite in the desired orbit. And GSLV जो F-14 था, कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं. meant to carry out the enhanced monitoring of earth surface, monitoring of atmosphere, ocean and environment. और specifically बात करें तो it will monitor earth surface, it will carry out oceanic observation, environment की in various spectral channels of meteorological importance. Vertical profile भी पता करेगा atmosphere की, and it also help in data collection, data dissemination, right? It will also provide the satellite aided search and rescue services. So with all, the INSAT 3DS, the satellite which was launched, will have a mission life of 10 years. It will augment the capabilities of the existing two meteorological satellites. यानी कि जो existing satellite है हमारी INSAT 3D, INSAT 3DR, उनकी capability को बढ़ाएगा INSAT 3DS. ठीक है, so in general it will boost India's weather and climate prediction services, early warning, disaster management services, right? So let's learn about the GSLV. GSLV आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन मॉडल ऑफ GSLV. GSLV की फुल फॉर्म जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इट वाज फॉर्मरली नोन एज GSLV Mach 2. इट फीचर्स ए 3 स्टेज व्हीकल. ठीक है, पहली स्टेज है आपकी सॉलिड फ्यूल स्टेज. तो जो इसमें सॉलिड मोटर्स हैं, सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं, बूस्टर्स हैं, दे आर अमॉन्ग द लार्जेस्ट सॉलिड बूस्टर इन द वर्ल्ड. इसमें मोर देन 200 टन्स ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट रहता है. ठीक है, पहली स्टेज की बात आती है. दूसरी स्टेज दैट इज लिक्विड फ्यूल स्टेज. इसमें इट यूजेस ए ट्विन लिक्विड इंजन कॉन्फ़िगरेशन विद 115 टन्स ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट. जो थर्ड स्टेज है, इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो है क्रायोजेनिक स्टेज. यहाँ पे करीबन 28 टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन रहती है. ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन क्यों रहती है, हाइड्रोजन क्यों रहती है. तो पहले जान लेते हैं पेलोड, ये कितना कैरी कर सकता है वेट. जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वहाँ पे ये 2200 से भी ज़्यादा किलो तक का वेट ले जा सकता है, कैरी कर सकता है. और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट्स हैं, जो कम ऊंचाई पर हैं, वहाँ पर ये 6000 किलो से भी ऊपर, किलोग्राम से प्लस वेट कैरी कर सकता है, राइट. अच्छा, इसरो की और भी लॉन्च व्हीकल हैं अपार्ट फ्रॉम द GSLV 3. दे आर PSLV, LVM-3. LVM-3 को पहले अर्लियर इट वाज कॉल्ड GSLV Mach 3. ठीक है, तो हमने क्रायोजेनिक इंजन्स की बात की थी कि जो कि थर्ड स्टेज में यूज होंगे. सो कुछ डिटेल्स हम जान लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स की. इनिशियली जो रॉकेट्स थे या डेवलपमेंट था वो रशिया में हुआ था. ठीक है, पर रशियन डिज़ाइन को इंस्पिरेशन लेके, रशियन डिज़ाइन से इंस्पायर होने के बाद इंडिया ने क्या किया था, इंडिजीनियसली, मतलब खुद से ही, अपने आप से ही, अपने देश में ही रिवर्स इंजीनियरिंग की थी. जो क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, बट दे आर in liquid form because they are at very low temperature. If we talk about the liquid hydrogen, the liquid state is achieved at below, जीरो से नीचे, यानी -250 डिग्री सेल्सियस पर अचीव होती है. और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए ये है -90 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड नाइट्री ऑक्सीजन है, इट नीडेड फॉर बर्निंग द फ्यूल. और जो लिक्विड हाइड्रोजन है,
एक्ट्स एज अ मेन फ्यूअल। ठीक है, दोनों मिलके इट प्रोवाइड ए ग्रेटर थ्रस्ट और पुश इन वी कंपेयर दैट इंजन टू द ओल्डर लॉन्च व्हीकल। यानी पहले के इंजन से अगर हम कंपेयर करें तो इस क्रायोजेनिक इंजन यानी कि लिक्विड फ्यूल, जो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसकी वजह से उसको ग्रेटर पुश मिलता है थर्ड स्टेज में। ठीक है, सो when we overall talk about the cryogenics, we talk about the things relating to the behavior of the material at very low temperature. So cryogenic का मतलब है behavior of material at very low temperature. So before that, one announcement is there. Tomorrow, that is 25th February at 11 a.m. to 1 p.m, FT Plus is organizing a mock test for candidates or aspirant who are appearing for prelims 2024. And it will be free of cost mock test. यू जस्ट नीड टू रजिस्टर करने के लिए आप लिंक पे चले जाएं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, या फिर स्क्रीन पे आपको QR कोड दिख रहा है, यू कैन स्कैन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहाँ पे देखो थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स आने वाले हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है ये टेस्ट कि आप सारे सिमिलरली प्लेस्ड जो एस्पिरेंट्स हैं, लोग हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करो, एनालाइज कर पाओ कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, किन एरियाज में आपको स्कोर कम आ रहा है, तो वहाँ पे इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि अभी भी 90 डेज लगभग हैं, तो उसमें इम्प्रूव आप कर सकते हैं। इसमें देखो प्रोविजंस में अवार्ड की फर्स्ट 3 रैंकर्स को मिलेगा 49 मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन, यानी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट 7 बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको 10 मॉक टेस्ट का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, अगेन रजिस्टर करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो फॉलो करें, या फिर जो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है, यू कैन स्कैन दैट। Also a test series conducted by the FT Plus, that is All India Test Series for Prelims named निश्चय। सो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज बनाई है। दैट इज अराउंड 49 मॉक टेस्ट हैविंग 4900 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। आपको 10 रिकॉर्डेड डिस्कशन क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रियल टाइम जो सिमुलेशन होता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, जिससे आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पाएँ अकॉर्डिंग टू द रियल एग्जामिनेशन। सिली मिस्टेक आप यहाँ कर पाएँ जिससे आपके एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, इसमें देखिए, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट एंड द क्वेश्चन, योर मनी विल बी रिटर्न। यहाँ पर मनी बैक गारंटी भी है, राइट। सो यू कैन रजिस्टर बाई क्लिकिंग द लिंक, और यू कैन विजिट द FT Plus IAS ज्ञान वेबसाइट, और you can scan the code here mentioned or visible on the screen. So now let's understand why GSLV is called a naughty boy of ISRO. Naughty boy ISRO का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनिशियल डेज में इसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं थी, फेलियर रेट बहुत थी। So it had a very high failure rate for any rocket used by the ISRO till date. इस लॉन्च से पहले 15 लॉन्च और किए जा चुके हैं इसके, so it failed around 4 times among those 15 launches. तो बहुत हाई फेलियर रेट है इसकी। मोस्ट रिसेंट फेलियर जो थी वो थी अगस्त 2021 में, जब एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नेम्ड, उसका नाम था EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, इसको स्पेस में ले जा रहा था तो फेल हो गया था, एंड इट फेल इनटू द अंडमान सी, समवेयर इन द अंडमान सी। रीजन फॉर फेलियर इज सिंपल, जो क्रायोजेनिक इंजन है वो फेल हो गया। क्रायोजेनिक इंजन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर पे, यानी बिलो जीरो टेम्परेचर पे, जो हमने बात की थी हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज बिलो जीरो टेम्परेचर पर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वो नहीं हो पाया होगा, तो इट मेल फंक्शनड एंड द क्रायोजेनिक इंजन फेल्ड, राइट। तो इस वजह से ये मेन रीजन है इसके फेलियर का। ठीक है, अब लेट्स कंपेयर विद द अदर्स। अच्छा, PSLV की जो हम बात करते हैं, PSLV रॉकेट, LMV-3 जो हमने बात की, जो एडिशनल जो लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के, PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। तो इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूज़ किया है, और 60 लॉन्चेस में सिर्फ 2 बार फेल हुआ है। पहली बार फेल हुआ था जब इनिशियली स्टार्टिंग में 1993 में, उसके बाद सिर्फ 1 बार और फेल हुआ है, हर बार ये सक्सेसफुल रहा है। LMV-3 जो GSLV Mach 3 है वो मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। 7 लॉन्चेस हुए हैं, 7 में से 7 बार सक्सेसफुल रहा है। ये LMV रॉकेट वही रॉकेट है, या लॉन्च व्हीकल वही लॉन्च व्हीकल है जो चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 मिशन में यूज हुआ था, और यहाँ इस LMV-3 में भी इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या है अभी GSLV का? देखिए, अभी कुछ मंथ्स में आने वाले, कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स में, इट हैज़ टू कैरी 1 मोर सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू द स्पेस। इसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार सैटेलाइट, एंड दिस मिशन इज बिलीव टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस मिशन फॉर द GSLV सो फार।
ठीक है, तो हमने इनसेट 3ds की बात कर ली थी कि ये ऑगमेंट करेगा यानी कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा ऑलरेडी जो प्रेजेंट है इनसेट 3D या इनसेट 3DR की। और निसार के बारे में जानते हैं। निसार के बस इतना है कि इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ, मतलब दोनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एंड इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो। ठीक है, सो इट इज़ निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगेन मैं नेम रिपीट कर रहा हूँ, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। सो इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोलैबोरेशन बिटवीन द इसरो एंड द नासा। ठीक है, एक प्रीलिम्स का पुराना क्वेश्चन देखते हैं 2018 का। देखिए इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि जैसे PSLV लॉन्च व्हीकल यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर एज जियोसिंक्रोनस GSLV आर डिजाइन टू मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। जैसे दूसरा स्टेटमेंट देखें आप, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द PSLV परमानेंटली फिक्स रहती हैं। अगर हम धरती से उनको देखें तो उनका पोजीशन में फिक्स लगता है यानी कि। और थर्ड स्टेटमेंट है कि GSLV मैक 3 4 स्टेज लॉन्च है। तो थर्ड तो क्लियरली रॉन्ग है, राइट। तो जब आप थर्ड रॉन्ग करेंगे तो आपके पास ऑप्शन A और C बचेगा, तो 1 वुड बी ऑब्वियसली राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपको पता हो या नहीं हो तो पहला स्टेटमेंट तो आपका राइट होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक गैस करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो बहुत इजीली गैस कर सकते हैं कॉमन सेंस से। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही जनरल सा लग रहा है, विच कैन नॉट बी ट्रू एग्जैक्टली एवरी टाइम, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, PSLV ऐसी जियोसिंक्रोनस में भी लॉन्च हो सकते हैं जहाँ से ऐसी अर्थ से देखने पर वो फिक्स ना लगे। तो आइडियली आंसर वुड बी A। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो आंसर वुड बी A। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए या फिर आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको ट्राई किया जा सकता है। So thank you for joining today's session of News in Focus, and I hope the discussion in this session of FT Plus Academy would have proved valuable for your upcoming civil services exams, or it would prove useful for especially UPSC prelims. So stay tuned for more in educational content and other topics useful for exams. Keep learning, stay tuned, and keep visiting the FT Plus YouTube channel. And thanks for watching. Signing off here. Thank you very much.